Welcome, students. Let us solve the second passage, discursive passage. Every moment of life is precious. Time is the essence of life. It is the wealth given to us by nature. Every day, all of us get 24 hours, nothing less, nothing more. Now, it is up to us how we use it. People who know how to make the best use of every moment easily open the doors of success in their lives, and those who misuse time get failures one after the other. There is a saying that spent time and spent words cannot come back. Everybody is tied by the limits of time. Even God respects the boundaries of time. Work wins appreciations only when it gets completed in a requisite time frame. Beyond the time allotted, work loses all its utility. However good may have been its quality. Just as failure, falling off, rains after the crops have dried up have no use, likewise, when the time is past the deadline, the work loses its importance and value. When iron is hot, it can be cast into whichever shape we want. Once it gets cold, nothing can be made out of it, however much we may beat the same. In the same way, a person who has learned to wisely use his time and has understood how to cast himself according to the need of the time has actually learned the true mantra of life. Shakespeare wrote in one of his plays, "I wasted time and now that time wastes me." It is true that a person who wastes even a little bit of time loses wonderful opportunities that he could have otherwise availed of by utilizing that time. All the great leaders have one thing in common. They wisely utilize every moment of their time. When other people are busy in wasting time in laziness, great men are busy in making plans for the future. There is no person in history who wasted his time and still managed to achieve greatness. Therefore, there is great need to manage time wisely. Careful time management refers to careful planning of time and sincere execution of this plan. This is the only mantra to attain success in any endeavor. A simple change in outlook and some modification in one's daily routine can result in a big jump forward towards greater achievements. So students, अब आइए समझते हैं इस पैराग्राफ को, पैसेज को। जीवन का हर क्षण बहुत ही बहुमूल्य है। टाइम जो है वह समय का सार है, जीवन का सार है। समय जो है वह जीवन का सार है और यह सबसे बड़ी संपदा है जो हमें नेचर द्वारा दी गई है। हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हम समय का कैसे सदुपयोग करते हैं। लोग जो यह जानते हैं कि किस तरह से हर क्षण का यूज़ करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, तो ईज़िली, तो यह जो समय है वह हमारी सफलता के जो द्वार है
उसको खोल देता है, उनके ज़िंदगी के सफलता के द्वारों को खोल देता है, और जो समय का दुरुपयोग करते हैं उन्हें एक के बाद एक असफलता मिलती जाती है। और एक कथन है, कहावत है कि स्पेंड टाइम, बीता हुआ समय और कहे गए शब्द वापस नहीं आते। हर कोई समय की सीमा से बंधा हुआ है, इवन ईश्वर भी समय की सीमा से बंधा हुआ है, वह समय की सीमा का आदर करता है। वर्क जो है, काम जो है, वह उसे केवल प्रशंसा मिलती है जब जो काम दिया गया है उसे पर्याप्त समय में, अपेक्षित समय में पूरा कर लिया जाए। बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड, यदि समय के परे यदि कार्य करते हैं तो कार्य जो है वह अपनी उपयोगिता खो देता है, चाहे वर्क, चाहे काम जो है वह कितनी ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो। तो जिस तरह से बारिश गिरती है, क्रॉप्स के सूखने के बाद जब बारिश की बूंदें उस पर गिरती है तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, उसी तरह से जो समय पास्ट में बीत गया, डेडलाइन को पार कर गया, पास्ट समय से अंतिम तिथि से हट गया, बीत गया, तो द लूजेज इज इम्पोर्टेंट, तो वह जो काम है वह अपनी जो महत्व है और जो मूल्य है वह खो देता है। अब जब लोहा गर्म होता है तो उसको हम जिस भी शेप में चाहें हम ढाल सकते हैं, और यदि वह ठंडा हो जाता है तो उस लोहे से हम कुछ भी नहीं बना सकते, चाहे उसे हम कितना ही पीट लें, कितना ही शेप देने की कोशिश करें। उसी तरह से यदि व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख जाए तो और समझ जाए कि किस तरह से अपने आप को समय के अकॉर्डिंग, समय की आवश्यकता के अनुसार ढालना है, तो वास्तव में वह जीवन के मंत्र को समझ लेता है। शेक्सपियर ने कहा है अपने प्लेज में, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ दैट टाइम वेस्ट मी, कि मैं समय को बर्बाद करता हूँ और अब वही समय जो है वह मुझे वेस्ट करता है। इट इज़ ट्रू, यह सही है कि पर्सन जो समय, थोड़ा सा भी समय वेस्ट करता है तो उसको जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जो अच्छे अवसर होते हैं जो वह प्राप्त कर सकता था अदरवाइज अवेल्ड बाय, तो वह उस समय का लाभ भी नहीं उठा पाता है। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि वे लोग अपने हर क्षण का, समय के हर क्षण का सदुपयोग बड़े ही वाइजली यूज़ करते थे। और दूसरे पीपल्स जो हैं, जब दूसरे पीपल्स अपना समय आलसपन में बिताते थे तो जो ग्रेट मैन होते थे वह अपने समय को फ्यूचर की प्लानिंग में लगाते थे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हिस्ट्री में जिसने अपना समय वेस्ट किया हो और वह अभी भी ग्रेटनेस को अचीव करते हैं। देयरफॉर इसीलिए टाइम को मैनेज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट जो है इसका मतलब होता है केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम और सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, कि किसी भी योजना का गंभीर रूप से या सीरियसली किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, यही केवल मंत्र है जो हमें सफलता दिला सकता है किसी भी काम में। एंडिवियर मीन्स प्रयास में या कार्य में। थोड़ा सा यदि हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं और कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस, चेंजेस लाएं हमारी डेली रूटीन में, तो हमारा इसका जो रिजल्ट होगा वो बिग जंप होगा ग्रेटर अचीवमेंट्स के लिए। नाउ पैसेज पढ़ने के बाद अब रीड करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेस इट्स यूटिलिटी, व्हाट इज needed for careful time management, what kind of people open the doors of success of their life, when does the work lose its importance and value, who has learned the true mantra of life, find out a word from the passage which means limitations required, get।
अब इसके आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ? इट्स आंसर इज टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेस इट्स यूटिलिटी? इसका आंसर हमें मिलेगा द वर्क डन बियॉन्ड द allotted time loses all its utility. Third question is what is needed for careful time management? Its answer will be careful planning of time and sincere execution of this plan is needed for careful time management. Question number 4 is what kind of people open the doors of success of their life? Open the doors of success of their life. Question number 4 is when does the work lose its importance and value? इसका आंसर होगा when the time passes the deadline lose its importance and value. Next question is who has learned the true mantra of life? Its answer will be a person who has learned to wisely use his time and has understood how to cast himself according to the need of the time has actually learned the true mantra of life. Next question is find out a word from the passage which means limitations. अब लिमिटेशंस मीन्स क्या होता है? इसका जो आंसर है वो हमें क्या मिलेगा? सीमाएं। सीमा का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स चाहिए या प्राप्त करना या अपेक्षित। तो इसका जो आंसर है वो है रिक्वेसाइट। थर्ड वन इज गेट। गेट मीन्स प्राप्त करना। तो इसका जो वन वर्ड आंसर है, जो मीनिंग है, वो आपको मिलेगा लास्ट सेकेंड लाइन में अटेन। अटेन मीन्स प्राप्त करना। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पैसेजेस को सॉल्व करते हैं। और हम पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वह यही है कि सबसे पहले आप पैसेजेस पढ़ लीजिए और पैसेजेस को पूरा पढ़ने के बाद उसे उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस के बाद जब आप सेकंड टाइम पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, उसे अंडरलाइन करते जाइए और जिस टेंस में पूछा गया है उसी टेंस में आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद आंसर्स लिखने के बाद पूरा आप उस क्वेश्चन आंसर्स को चेक करें और इस तरह से आप जो अनसीन पैसेजेस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।